A lot of other factors also play a very big role in shaping up any entrepreneurial ecosystem in any geography of the world. So I used to teach before doing this, but then my mind was always towards starting something of my own. लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स को एक डिफरेंट डेरिवेटिव्स के डिफरेंट रूप देकर कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करती हूँ. मेरे हस्बैंड ने कहा कि डू समथिंग, तो मैं कुछ भी नहीं करना चाह रही थी. आई वांटेड टू डू कि जो कोई नहीं करता है, एंड समथिंग विच शुड हैव क्वालिटी along with the quantity. Hello and welcome to Avaz, the Voice Interviews. I'm Nazir Ganai, and we are joined by some of the finest startup stakeholders who are into the field in Jammu and Kashmir, and they want to change the startup ecosystem in Jammu and Kashmir. And we have with us Mohit Mehraj, who is the founder of Kashmir Box. Kashmir Box came into being when I think startup policy, startup buzz was not there. So आप उस वक्त आए, आपने ऑनलाइन अपना जो है जमा लिया था अपना काम, और उसके बाद it just went away, it just vanished. Why? What was the reason? And you can talk about your initiative. Sure. So, Kashmir Box is an e-commerce platform primarily. That's how we started the business. The business model is selling anything and everything that comes out of the geography of Jammu and Kashmir. So, ranging from the beautiful exotic products that come out of this geography, like pashminas, handicrafts, paper mache, walnut wood, saffron, honey. So everything and anything that comes from this geography is something that we offer. We are a social impact model where we work with the artisan and the farmer communities of Kashmir and work on a profit sharing model, so that we are not just building a business but also being conscious of building the economy in general. When we started this initiative in 2011, I was a 19-year-old kid who, in my naiveness, thought that building a business is actually building a website. But that could not have been further from the truth. And the last 13 years have been very humbling for us personally, for myself also, where we have understood that, it takes a lot more than just building a website in order for us to build a sustainable and a scalable business. So that's about it. We have seen a lot of discussions going on especially post 2019, when Article 370 was abrogated. A lot of focus was shifted on the youth, Right, who are there on the on the startup this landscape. Do you think government is really doing something for startups? Honestly, I've always maintained this, and I'm of a very strong belief that government is, at the end of the day, an enabler. The ecosystem that you develop can not only have one ecosystem enabler as a stakeholder like the government, but a lot of other factors also play a very big role in shaping up any entrepreneurial ecosystem in any geography of the world. So when we talk about startup ecosystems, we can take a prime example of what happened in the Silicon Valley, right? It was a bunch of people who came together and thought of doing something very revolutionary from that place, wherein they could serve the world. And I think that ideation and that kind of commitment and will comes from people primarily who are intending to build business. The role of the government can be of an enabler, where they provide the infrastructure and the ecosystem, but the ecosystem is developed when you have entrepreneurs, you have angel investors, you have venture capitalists, and more importantly, the local community coming together and trying to build an ecosystem together. बहुत बहुत शुक्रिया मोहित. Local community, role of local communities involvement, and I think you're very right when you said government can be an enabler, but then there are different stakeholders that can play their part. We have seen women being the most important stakeholders in startup ecosystem. आप अपना नाम बताएं और आपका स्टार्टअप क्या है और क्यों आपने ऐसा सोचा कि ये करना चाहिए हमें? My name is Nava, and I own a business called Jamkal Jars. We make homemade jams and pickles. मैंने क्यों सोचा? Maybe I always wanted to do something of my own. So I used to teach before doing this, but then my mind was always towards starting something of my own. So when I began this, my primary thought was कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे आता है. तो cooking has always been something which I was interested in.
तो what I did, I started looking around. In the COVID का time था, तो I didn't have much to do. I was at home all the time. So I started to, Food has been yeah, has been a blessing in disguise. Yeah, you can say that. So what I did was I tried to look around in the market. तो मैंने देखा कि there were not many pickle brands in our valley. So I thought, why not? Let's give it a try. तो what I did, I started making pickles. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था how to do it. But then I made small batches वगैरह and I made my friends and family try. So they liked it, and then I thought I should go into the market. So that's how the idea came up. we have with us one more startup owner. हमारी और एक बहन है यहाँ पे. तो आपका स्टार्टअप क्या है और आप अपने स्टार्टअप में क्या कर रही है? मेरा स्टार्टअप ड्राई फ्रूट्स के बारे में है. तो ड्राई फ्रूट वन ऑफ द बहुत ज़्यादा चीज़ है जो लोग पसंद करते हैं क्या कश्मीर. नाम है आपके स्टार्टअप का? ड्राई फ्रूट्स हवेली. ड्राई फ्रूट्स. जी, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स को एक डिफरेंट डेरिवेटिव्स के डिफरेंट रूप देकर कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करती हूँ. जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डिराइव हुआ है दुबई के चॉकलेट्स से. तो चॉकलेट्स खुद को भी मुझे बहुत पसंद है. एंड व्हेन जब ये आइडिया आया, मेरे हस्बैंड ने कहा कि डू समथिंग, तो मैं कुछ भी नहीं करना चाह रही थी. आई वांटेड टू डू कि जो कोई नहीं करता है, एंड समथिंग विच शुड हैव क्वालिटी अलॉन्ग विद द क्वांटिटी. तो आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी जिसमें कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका अपना यूएसपी हो, उसका अपना एक यूनिक प्रोडक्ट प्रपोजल हो, जिसमें तो उसी आइडिया से आई केम अप विद ड्राई फ्रूट्स हवेली. तो यहाँ पे हम बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स की डेरिवेटिव्स जैसे चॉकलेट आमंड्स हैं, तो उसमें हम शुगर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. तो आज जो आईसीसी के द्वारा यहाँ पे एक इवेंट हुआ, राइजिंग जम्मू एंड कश्मीर अनवीलिंग द पोटेंशियल, आपको लगता है कि इससे आपको कोई फ़ायदा मिला है? और एक्सपेक्टेड है, हाँ, फ़ायदा तो मिला है. जैसे जो भी डिग्नेटरीज़ हैं जो आज आए हैं, दे वर द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उनसे काफ़ी मेंटरशिप हमें मिला. जैसे मिस्टर सुरेश थे, तो उनसे काफ़ी कुछ हमने सीखा. उसके बाद फिर जो आदित्य बिरला से थे, तो उनसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा. उसके बाद तमाम पॉइंट्स नोट डाउन किए जो कि एक बिज़नेस को ग्रो होने में हेल्प करता है. नाज़रीन, आपने सुना होगा कि मिलेट्स को नेशनल लेवल पे कितना प्रमोट किया जा रहा है. एंड इन फैक्ट प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीच also has been promoting millets and the use of millets across the globe. We have with us someone who is doing a lot of work with millets. तो आपका स्टार्टअप क्या है और आप मिलेट्स के साथ क्या करते हैं? जी, मेरा नाम फयाज है. आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KFG Foods Private Limited. So I have started my journey last for 2 years. I am working on this project. तो मुद्दा मकसद ये था कि वैली के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बेकरीज तो है, मशरूम बेकरीज आर देयर, लेकिन जो अभी हम वर्ल्ड के अंदर देखें या वैली के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी हेल्थ कंसर्न्स का इशू बहुत आ रहा है. तो अभी हम देखेंगे डायबिटीज के जो कितने बहुत सारे केसेस है, उसमें 9.8 जो यहाँ के वैली के अंदर है इसमें परसेंटेज है. ऑब्सिटी की प्रॉब्लम है, कॉर्नरी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हेल्थ रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर अभी तक किसी ने काम नहीं किया. तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मिलेट्स पे ही थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें न्यूट्रिशस वैल्यू बहुत ज़्यादा है. ये हेल्थ रिगार्डिंग जो भी है इसमें सारी चीज़ें वो है जो एक इंसान को ज़रूरत है. तो इसीलिए मैंने मिलेट का ही चूज़ किया. तो क्या लग रहा है आपको, आपका जो स्टार्टअप है ये इज इट डूइंग गुड? ये स्टार्टअप Response कैसा का है? रिस्पॉन्स तो इसमें बहुत, क्योंकि इस पे भी जो वैली के अंदर हम देखेंगे रिस्पॉन्स इज वेरी हाई. कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एग्जीबिशंस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज. तो आई हैव बीन अप्रिशिएटेड फॉर माई प्रोडक्ट्स, फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो बहुत अभी ज़रूरत है इसमें काम करने की. तो लोगों के अंदर ये रुझान है कि उनको हेल्थी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा कॉन्शियस की ज़रूरत है. तो इसलिए हमें इसमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग की भी ज़रूरत है. आई थिंक दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है और देन ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस इज टू बी डन. वी हैव विद अस Rais, who became an inspiring story, especially in COVID times. He is someone who started, food delivery package, and then he gave it a name, Tiffin Aw. So Tiffin Aw is a Kashmiri name, and Tiffin he joined this term with the Tiffin. Rais,
आज तक की जर्नी आपकी कैसी रही है? आपको बहुत अखबारात ने, बहुत मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या कैसी आपकी जर्नी आज तक रही है? आई थिंक जैसे एक रोलर कोस्टर में इंसान होता है, तो वैसी जर्नी रही। इवन आज के दिन भी चैलेंजेस देखने को मिले। तो मोस्टली जब भी हम देखते हैं किसी स्टार्टअप कोई बिजनेस नया आता है, तो लोगों को लगता है बहुत इजी है, पहले दिन में ही सब कुछ होना चाहिए। बट आई फील कि जब तक हम एक उस लेवल तक ना पहुंचे, तब तक आपकी स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगी। जी बिल्कुल, और आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है और खुद आपको इन्वॉल्व रहना लेकिन है। अगर मैं पर्सनली देखूंगा तो पर्सनली मैंने आपको साइकिल पे भी जाते हुए देखा है, टिफिन लेके। फिर इट जस्ट यू ग्रेजुएटेड टू स्कूटर, फिर स्कूटी भी आई, फिर आपकी गाड़ी आ गई, अभी आपकी एक स्पेशलाइज्ड वैन है। जी तो आपको लगता है कि आपके स्टार्टअप या आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सपोर्ट हमें लोगों ने किया यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन नहीं था मार्केट में। आप दिन में कहीं पे भी आप बिजी रहते थे, तो आपको कुछ खाना होता था, आप चाहते थे कि अब मैं घर का कुछ खाता, बट घर से आप साथ नहीं ले पाते थे। बट नाउ यू कैन कॉल अस, हम आपको घर का खाना पहुंचाते हैं। और अभी हमने सिर्फ टिफिन सर्विस तक महदूद नहीं रखा, अभी हम इवेंट्स कैटर करते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, वो कैटर करते हैं मल्टीपल लोकेशंस पे। आज हमारा पुलवामा में एक इवेंट था, वहाँ पे काम चल रहा था, वहाँ पे फूड हमने सर्व किया। कल हमारा सोनमर्ग जाएगा यहाँ से खाना। तो ऐसी मतलब लोग अब वेलकम कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट, लोगों का प्यार मिल रहा है काफ़ी। एंड लोग लाइक करते हैं, क्योंकि अर्लियर दे यूज्ड टू ईट समथिंग आउटसाइड, फिर उनको रात भर वो फूड पाइप में वो जलन होती थी या वैसा कुछ होता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं है। बाकी जर्नी बाई फुट से लेकर अभी तक काफ़ी ये रही। दोस्तों, रईस ने जो है अपना बिजनेस इनिशिएटिव, अपना स्टार्टअप एक छोटे इलाके से स्टार्ट किया। आज इनका कहना है कि ये वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जाके फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इवेंट्स को कैटर करते हैं और बहुत बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स को भी कैटर करते हैं। रईस, क्या रहेगा आपका स्लोगन, जो आपकी टिफिन नाउ का स्लोगन है, और वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या रहेंगे आपके? यही कि जो हमारी टैगलाइन है, टिफिन नाउ सर्विंग होममेड फ्रेश एंड हेल्दी फूड। और लोगों से भी यही कहेंगे कि आप जो भी खाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। एंड वी आर व्हाट वी ईट। सो आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन कि आप हमेशा जो खाते हैं, पूरा उसकी तहकीक करें कि उसमें मत कोई गलत चीज़ डली है जिससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी जो आपके बच्चों को दे रहे हैं, जो आपकी फैमिलीज को फीड कर रहे हैं आप, तो पूरा इंश्योर करें कि ये सेफ है, हेल्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।